Okay, so basically reports, you have to fetch the report as per client's requirement. जो client आपको बोल रहा है कि हाँ मुझे ये tables का data चाहिए, इतने vendor का data चाहिए, any kind of report regarding to any model, whether it is MM, PP, SD, you should be able to fetch the report. तो उसके लिए आपको क्या required है? You should know the standard tables. जैसा मैंने आपको starting में बोला था कि there are lot of data, lot of tables, like thousands of tables which has been created into SAP, so you can use that tables. So क्या होता है अगर जो tables हमें required है वो अगर created नहीं होंगे, so ABAPers, advanced business application programmers, the technical models in a model in SAP, they create the table by using Y or Z. Okay, so let me explain you in this Excel sheet. Can you see my screen, guys? Yes, sir. Okay, so So there are two types of tables. One is standard table and second is customized table. Standard tables means one which are created by SAP system, like SAP which has already created into SAP. So customized table means the one which is created by ourselves, like as per the requirement of organization. Hmm. Now what exactly happens over? Like what SAP said, like they have created the standard tables by using A to X. By using A to X alphabets, they have created the table, standard tables. They have left us Y and Z. Why? किस लिए छोड़ा उन्होंने सर? अगर as per our requirement, for example, as per our requirement, if the table is not created into the standard table, so they have given us like Y and Z. Y and Z. Like you can use these two alphabets and create your own tables. फॉर एग्जाम्पल अगर A2X में कुछ नहीं, जो हमें चाहिए वो टेबल्स है ही नहीं, सो you can use Y and Z and create your own tables. Let me show you an example. So there is a T code called SE11, which is used by the ABAPers, like at ABAP dictionary. So I used to train on ABAP as well. I have given training for the ABAP candidates as well because I work on those activities as well. Now I have stopped giving training to the ABAPers. So this is the table. Like for example, as I said, A2X is standard table which is created by the system. For example, if I want to open a table, I know the table name which is called as um, for example, LFA1. I'll just display it. So this is the table for which one? It's the table for vendor master. Vendor master. Okay. If I go back, if I click on create, I cannot create it. If I click on change, I cannot change it. Why? It will ask me access key, which is with the SAP authorization team. So this is the standard table. Why? Because it starts with L. Huh? So if I want to open flight data, for example, S flight is another table. Let me just open it. S flight. I cannot create. I cannot change. It will ask me access key, which we don't have it. So I can only display this one, and I can only utilize this one. So this is the table. So for example, you guys are working with Wipro. So आपका खुद का एक टेबल है which is not created by SAP team into A2X. So they have given us two alphabets like Y and Z. आप ये दो alphabets use करके अपना एक नया table create कर सकते हो. So how to create it? Yeah, Abacus ही create करता है. I will just give a rough idea. If anyone is interested, like how to create completely, so I can give you notes or I can just have another session and explain you how to create it. So I will add Y और Z. फॉर एग्जाम्पल Z, मुझे विप्रो का कुछ विप्रो में जो जितने भी एम्प्लॉयज है उनका डेटा क्रिएट करना है, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी. सो आई जस्ट ऐड Z विप्रो एंड आई विल क्रिएट. So now okay, let me check axis field, which is axis field. Okay,
Z or Y nearby. Even it's asking if it's for this one. Basically, when we are working in organization, only Y and Z are the one which we can use it. But here I have to check why this is not accepting Y and Z also. Y TCS TVS or TVS anything. Okay, let me check. But this is the one which this is the standard one. Even in everywhere like globally, आप यहाँ पे काम करो और out of India कहीं पे भी काम करो. A to X are standard. Y and Z are customizable. I have to check कि यहाँ पे वो की क्यों पूछ रहा है even by entering Y or Z because ये T कोड मैंने यूज नहीं किया बहुत दिन हो गए. I used to train previously. So यहाँ तक clear guys. नहीं समझ ये करते क्या है तो फिर सर अभी मैं हाँ बोलिए शुभम. क्या करते क्या है मुझे समझ नहीं आई मतलब अभी जो आपने किया था क्या होता है मतलब ओके मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ. सो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हाउ टू फेच द रिपोर्ट्स. हम रिपोर्ट्स क्यों फेच करते हैं? क्लाइंट के हिसाब से हम डेटा फेच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने बोला कि लास्ट 1 ईयर में कितने वेंडर्स क्रिएट हुए हैं, मुझे उस वेंडर आईडी चाहिए, मुझे उस वेंडर का नेम चाहिए और उस वेंडर का मुझे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को कौन कौन से है ये मुझे डिटेल्स चाहिए. सो एज पर यू SAP consultant or SAP support user, you should know it how to fetch the data and you should also know it कि ये डेटा कौन से टेबल में है और कौन से टेबल से फेच करना है. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज दैट फॉर रिपोर्ट्स द टी कोड इज कॉल्ड एज SE16 16N. So just add over SE16N. Continue. So अभी सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट है. व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे रिक्वायरमेंट है टू गिव द वेंडर नेम्स. जितना भी वेंडर क्रिएटेड हुआ है उस वेंडर के नेम चाहिए. उस वेंडर के नेम्स है एक टेबल, द वन टेबल कॉल्ड एज LFE1. LFE1 जब जस्ट एंटर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनरल डिटेल्स ऑफ द वेंडर. ठीक है. आई विल जस्ट ओपन अनदर स्क्रीन. LFA1 is for LFB1 is for vendor company code. LFM1 is for vendor purchase of data. XQ03. ओके. नाउ अभी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे वेंडर का नेम और डिटेल चाहिए. नेम और डिटेल कहाँ पे रहता है? ये पे 3 अलग अलग टैब है. जनरल टैब, कंपनी कोड टैब, परचेस ऑफ टैब. अभी आप मुझे बताइए कि हम वेंडर का नेम कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं? कंपनी कोड लेवल पे या परचेस ऑफ लेवल पे या फिर जनरल डेटा पे? कंपनी कोड लेवल पे सर. परचेस और कंपनी हम मैंने पूछा वेंडर का नेम. कंपनी कोड डेटा पे सर. ओके. एनीवन एल्स? परचेस पे ना तो पता नहीं इसको पे झगड़ा करता है. अच्छा सर परचेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका मतलब है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे. नोबडी इज प्रैक्टिसिंग. नहीं सर प्रैक्टिस तो हम रोज कर रहे हैं. प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल नहीं पूछा. हम वेंडर का डिटेल्स कहाँ पे मेंटेन करते हैं? लाइक वेंडर नेम पूछा मैंने. वेंडर नेम इज समथिंग व्हिच इज इनटू जनरल डेटा टैब. अभी मैंने ये कोई भी एक वेंडर मैंने ओपन किया. लेट मी ओपन दिस नेम. ओके. आई विल जस्ट press F7 और just select this one. select all. तो वेंडर का नाम कहाँ पे आएगा? मैंने प्रेस एंटर. वेंडर का नाम तो पहले पेज पे आ रहा है ना.
यहीं पे आ रहा है, देखो वेंडर का नाम यहीं पे है। अच्छा अच्छा कंपनी कोड पे कहाँ पे नाम आ रहा है? कंपनी कोड तो अभी स्टार्ट होगा फ्रॉम, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला सर कंपनी कोड यहाँ फाइनेंशियल से स्टार्ट हो रहा है। विच इज दिस स्क्रीन? ओके लेट मी शो यू, जस्ट ओपन वन मोर पेज। आपको मैं यहाँ से एक बार बता दूंगा। सर वेंडरचे डिटेल्स सगळे कंपनीला दिले जायला पाहिजे का, म्हणजे फायनान्शियल त्याचे काय काय जे हे करतो आपण. राइट, म्हणून मी त्यासाठी म्हणत होते की कंपनी कोडला कदाचित त्याचे सगळे डेटा जो आहे तो सेव्ह केला असावा म्हणजे. कंपनी को ओके, आई नो इट आउट। बेसिकली कैसा होता है, कंपनी का जो नेम है, अभी मुझे बताएंगे, आई विल जस्ट हाँ, एक्सप्लेन वन सेकंड। सो दिस इज द स्क्रीन वेयर दिस इज द जनरल डेटा टाइप वेयर वी मेंटेन वेंडर नेम, हाँ, ओके. वैट नंबर एंड बैंक डिटेल्स। एक एग्जांपल देता हूँ अभी, विप्रो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन पुणे, हाँ, उसका जनरल डेटा सेम रहेगा। विप्रो का एक वैट रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, विप्रो लिमिटेड एक नाम रहेगा, वो जो सेम है जो कि यहाँ पे रहेगा, राइट, यहाँ पे उसका उसका Yes. ये कहाँ पे रहेगा, वैट उसका भी जनरल पे ही रहेगा। दिस इज स्क्रीन, कंट्रोल स्क्रीन, यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल स्क्रीन, ये वाला कंट्रोल स्क्रीन, ठीक है। अब इसका बैंकिंग जो है, बैंकिंग भी एक ही रहेगा। बैंकिंग देखो यहाँ पे है, पेमेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे है। बट विप्रो का अगर एक कंपनी कोड पुणे में है विच इज 1234, पुणे में है। बेंगलोर में दूसरा कंपनी कोड है 4567, मुंबई या फिर कोई और चेन्नई ले लो, वो थर्ड कंपनी कोड है। तो कंपनी कोड यहाँ पे वेंडर का डिटेल्स जनरेट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पेमेंट मेथड होगा, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। पेमेंट मेथड, पेमेंट टर्म्स वहाँ पे होगा। पुणे का पेमेंट टर्म्स अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, और चेन्नई का अलग होगा। तो जनरल डिटेल्स, नेम, वैट, जो डिटेल्स है ना, जैसे कि अपना नेम है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब जनरल डिटेल्स हो गए अपने। और जो हमें सैलरी जो मिलेगा, पेमेंट टर्म जो होगा, वो सब यहाँ पे रहेगा। लाइक टर्म्स ओके. एंड कंडीशन, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, वो यहाँ पे है। ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये जो डिटेल्स यहाँ पे 4 टाइप्स है, एड्रेस, कंट्रोल, पेमेंट, ट्रांजेक्शन और कंट्रोल। दिस फॉर एग्जांपल जनरल डिटेल्स के लिए यहाँ पे टेबल है, लाइक LFA1, वो डेटा यहाँ पे मिलेगा, एक्सेप्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि बैंक का अलग ही टेबल है विच इज कॉल्ड एज LFBK और BNK बैंक का, हाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड आई विल गिव ऑल द टेबल्स नेम विच यू शुड नो इट, ठीक है। सो दिस इज जनरल डिटेल्स ऑफ द वेंडर नेम एंड वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे होगा। हाँ, अभी कंपनी कोड, अभी सबसे पहले मुझे क्लियर करने दो। हाँ, वेंडर का मुझे नेम चाहिए, जितने भी वेंडर क्रिएटेड है वो नेम मुझे यहाँ पे चाहिए। तो फिर अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल वेंडर आईडी है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंपनी कोड, कंपनी कोड क्या है अपना, TVS2। ये मेरे इतने, ये इतने इतने वेंडर्स हैं मेरे, दिस आर माय वेंडर्स। Just I want to select this one, select, copy. If you have thousands of vendor, you can get the names of those vendor, just click over here, यहाँ पे एक arrow है, just click over and you can just upload it, even you have thousands of vendor। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया, मेरे पास इतने इतने वेंडर है, 1000 10,000, मुझे इसके डिटेल्स चाहिए। सो हाउ यू कैन प्रोवाइड द डिटेल, लाइक आई विल जस्ट एग्जीक्यूटेड, मैं ज़्यादा कुछ एंटर नहीं करूँगा। सो दिस इज द वेंडर नेम्स। सिर्फ वेंडर नेम पूछा है तो आपको सिर्फ इतना देना है। इफ दे आस्क यू टू प्रोवाइड ऑल द जनरल डिटेल्स, तो उस जो LFA1 का जो टैब्स है उसमें कितने हैं, ये एड्रेस आ गया उसमें, पोस्टल कोड आ गया उसमें, स्ट्रीट एड्रेस आ गया, ऑल द जनरल डिटेल्स जो यहाँ पे है, स्क्रीन पे है, यहाँ पे वो टेबल में दिखा देगा। सिर्फ अगर नेम पूछा तो यू कैन प्रोवाइड दिस डेटा। ये क्लियर होगा आपको? मैं वन बाय वन बता रहा हूँ आपको, सिर्फ LFA1 का बताया, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर. Now we'll go to the LFB1 table. This is another table, LFB1। LFB1 मतलब क्या होगा, कौन सा आ गया, दिस इज रिलेटेड टू, यहाँ पे लिखा है कंपनी कोड, वेंडर कंपनी कोड। सो दिस इज द डिटेल्स विच वी कैन प्रोवाइड टू द वेंडर। अगर उन्होंने पूछा कि फॉर एग्जांपल
इतने इतने वेंडर्स है, उसका पेमेंट टर्म क्या है मुझे पता नहीं. सो हाउ यू कैन प्रोवाइड द डेटा फॉर देम. लो, सो व्हाट आई विल डू इज दैट मैंने ऑलरेडी 4 वेंडर सेलेक्ट कर लिए थे. सो आई जस्ट सिलेक्ट दोस वेंडर्स एंड क्लिक ऑन अपलोड, कंटिन्यू. एंड पेमेंट टर्म्स का पूछा है, तो फिर यहाँ पे सारे टिक है, मुझे सारे नहीं देना, उनको सिर्फ सिलेक्टेड वेंडर सिलेक्टेड ही देना है. पेमेंट टर्म्स, सो जस्ट select this vendor and payment terms. पेमेंट मेथड है, ठीक है, मैं पेमेंट मेथड भी दे देता हूँ या फिर पेमेंट टर्म्स भी देता हूँ, विच इज ओवर हियर. यहाँ पे आई जस्ट एग्जीक्यूट इट. बस इस वेंडर का यहाँ पे आएगा पेमेंट मेथड आ गया, और यहाँ पे आएगा पेमेंट टर्म्स जो हमने लिया था इमीडिएट. सो आपको समझ में आ रहा है, लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट. एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट यू हैव टू फेच द डेटा. सो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ tables फेच किया यहाँ पे. सो हाउ वी कैन एक्सपोर्ट इट, यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस पर्टिकुलर icon which is called as export. You can go to the local file या spreadsheet ले सकते हो, any one of those options which is convenient for you. Text column और just send. और आप अपना एक कोई भी पाथ होगा या फिर you can save it over your path. मैं सिर्फ जस्ट यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल LFP1 डेटा. It will be in Excel format and save. I just generate it. Once I click on generate, this file will get transported to the SAP. You can see. So like this way, you can fetch thousands of vendor details. Like यहाँ पे ऐसा डेटा है, so you can just Excel में आपको सिर्फ कुछ insert या फिर निकालना, ये जो चीजें ऊपर है, you can just remove this and send. प्रेजेंटेशन अच्छा करके आप you can just send the details as per requirement. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? So now in case एक असेसमेंट काइंड ऑफ दे दो आप लोगों को. कैन यू डू इट? ओके, मैं एट द एंड ऑफ सेशन में दे दूंगा. सो लाइक दिस वे, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल व्हिच यू हैव सीन जस्ट नाउ. हाँ, LFA1, LFB1, LFMK. Like this way we do have standard tables for material as well. मटेरियल के भी उसका अलग से स्टैंडर्ड टेबल है, वेंडर का भी बहुत से टेबल्स है. सेम वे वी हैव many table. For example, if I go for material, it's called as Mara table. मारा के लिए जनरल जो जनरल टेबल्स है, फॉर एग्जांपल जनरल डेटा है मारा में. बहुत से टेबल्स है, मारा है, MK80 है. सो यू शुड नो दिस टेबल्स. I will send you an Excel file where you will see around 45 to 50 standard tables. No need to keep all those tables in mind. Yes, you have to keep around 10 से 15 tables का नाम, you should know it, which is used basically. For example, वेंडर के लिए ये 3 क्यों इम्पोर्टेंट है? ये 3 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वेंडर का सारा डेटा इसमें है. इसी ओवर हियर यहाँ पे अगर देखोगे, ये है अपना LFA1, ये LFB1 है, और यहाँ पे अपना LFM1 है. Only the thing is that for payment transaction, which is called as bank for bank, it is LFBK. LFBK ये एक टेबल है. यहाँ पे आपको बैंक कंट्री दिखेगा, बैंक की अकाउंट नंबर. अगर आपको पूछे कस्टमर की किसी पूछा कि फॉर एग्जांपल इतना इतना ये एक वेंडर है, उस वेंडर का मुझे बैंक डिटेल्स क्या है मुझे बताओ, आई वांट टू चेंज द बैंक डिटेल्स. तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये 100 वेंडर्स का बैंक डिटेल्स क्या क्या है. सो हाउ यू विल फेच इट. सो you have to fetch it by this table. LFBK है यहाँ पे, और लेट मी शो ऑन द टेबल व्हिच इज कॉल्ड एज बैंका में आपको देखा बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा, सिर्फ कोड दिखेगा, और बैंक नंबर है. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द बैंक डिटेल्स. So reports is not only for only MM, reports is for all over SAP models, whether it is PP, MM, SD. Only and only thing you should know is that how to fetch the report. मतलब कौन सा डेटा किस टेबल में है,
वेंडर का डिटेल्स किस टेबल में है, कंपनी कोड का किस टेबल में है। इवन फॉर फाइनेंस एज वेल, इफ यू आर वर्किंग इनटू एन MI-FI इंटीग्रेशन, MM-FI इंटीग्रेशन, देन यू शुड नो इट कि उसका टेबल्स क्या क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो भी बाद में कि आपको टेबल्स, आई विल लेट यू नो व्हाट आर द टेबल्स, बट यू शुड नो इट हाउ टू फेच इट। यहाँ तक क्लियर गाइस? हाँ सर। कुछ क्वेरीज रिपोर्ट में? नहीं सर, शुभम, अभी तो नहीं है। प्रसाद, पीयूष, चिन्मय? नहीं सर, अभी तो इसमें नहीं है। इसको सर हमें करना पड़ेगा तो ही आएगा ये वाला थोड़ा सा। मैं आपको आज या फिर कल तक मैं आपको रिपोर्ट्स का टेबल सेंड करूँगा। सो व्हाट यू गाइस डू, you just send me the report which has vendor name। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी वेंडर आपने क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कोड है 1234, जो भी आपका कंपनी कोड, उस कंपनी कोड में कितने वेंडर क्रिएटेड है, हाँ कितने हेलो, वेंडर क्रिएटेड है और उनका नाम क्या है और वो किस परचेसिंग ऑर्डर में क्रिएटेड है, ये मुझे एक ही फाइल में चाहिए, ठीक है सर। एक ही फाइल में। रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? सर काय काय हवं? All vendors in one company code, all vendor details, all vendors general details हवंय, आणि त्यानंतर I do required pay terms and pay method, and also to know कि कौन से परचेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्रिएट किया गया है, परचेस ऑफ for which purchase org it has been created, and I want the data in one Excel sheet। हाँ, यहाँ पे आई जस्ट शोइंग कॉलम्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, फिर साइड भी, लाइक देयर शुड बी वेंडर आईडी, वेंडर नेम। तब यहाँ बहुत पे डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे। हाँ म्यूट पे जा सकते हो, फॉर एग्जांपल जब क्वेश्चन होगा तभी आप पूछ सकते हो, रेस्ट यू कैन म्यूट। वेंडर आईडी, वेंडर नेम, मेरे को यहाँ पे चाहिए पेमेंट टर्म्स, मेरे को फिर यहाँ पे चाहिए पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, परचेस ऑफ का डिटेल चाहिए, और इकॉन अकाउंट। सर मटेरियल मास्टर ये सब भी चाहिए क्या आपको? नहीं, मैंने अभी फिलहाल आपको सबसे बेसिक वाला दिया है। मटेरियल मास्टर का तो मैं आपको बीच बीच में मटेरियल कस्टमर और बाकी सब चीज़ों का मैं आपको दूंगा फेच करने के लिए, बट नाउ आई जस्ट रिक्वायर दिस बेसिक टेबल। हिंट देता हूँ, ये सब ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टेबल्स यूज किए जा रहे हैं। सो नाउ यू गाइस फेच द डेटा एंड जस्ट सेंड, या फिर आप दिखा सकते हो इन द नेक्स्ट लेक्चर, यू कैन सेंड मी योर मेल और यू कैन जस्ट सेंड मी द वीडियो एज पर योर कन्वीनियंट, यू कैन जस्ट शो मी। सर एक मिनट सर, समझे नहीं क्या मतलब, क्या देना क्या है आपको असाइनमेंट में पूरा? आपको ये देना है, ये जो डिटेल्स यहाँ पे लिखा है ना मैंने, आपने हाँ जितने भी कंपनी कोड, एक कंपनी कोड आपने क्रिएट किया अभी तक, एक दो, फॉर हाँ एग्जाम्पल किए है ना 4 सर। कंपनी कोड क्रिएट किया, उसी 4 ही कंपनी हाँ कोड आपके कितने वेंडर हाँ क्रिएटेड है, उस वेंडर का नाम क्या है, उसका पेमेंट टर्म, पेमेंट हाँ, मेथड क्या है, और वो किस परचेसिंग ओके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटेड है। हाँ, ठीक है एंड उसका रिकॉन अकाउंट भी चाहिए। ठीक है, ये रिपोर्ट मेरे को एक ही शीट में चाहिए, 3 अलग अलग शीट में, एक ही शीट में मेरे को डेटा चाहिए। नाउ यू गाइस फेच इट एंड शो मी, जब नेक्स्ट लेक्चर हो या फिर अभी हो, कभी भी आप दिखा सकते हो। ओके। सर आता हा टेबल डिस्प्ले करायला आपल्याला कुठला टी कोड यूज करायचा होता? SE16 का SE11? हाँ ओके, SE16 यूज करना है आपको, यू कैन यूज SE16 टू गो टू दैट पर्टिकुलर टी कोड। आई विल शो यू वन्स अगेन, ह्या स्क्रीनसाठी SE16 आहे। SE11 मी तुम्हाला जसे की एक्झाम्पल दाखवले, तिथे सगळे स्क्रीन डिस्प्ले होतात। ओके, SE11 मध्ये? हाँ सॉरी, SE11, या राईट। SE16 मध्ये, SE16 मधनं तुम्ही रिपोर्ट फेच करू शकता। आई विल शो यू द, आई विल सेंड यू द टेबल नेम्स। ओके।
ओके, सो शुभम, आपका एरर क्या था, आप पूछ सकते हो आप। मतलब आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही थी? कैन जस्ट गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन। सर मुझे नंबर रेंजेस में आ रही थी। नंबर रेंजेस में आ रही थी, ओके। अमूल, आपको कहाँ हाँ पे आ रही थी इशू? परचेस रिक्विजिशन जब क्रिएट कर रहा था ना, हम्म, तब अकाउंट असाइनमेंट टू मटेरियल। परचेस रिक्वेजिशन में। यस। ओके फाइन, ठीक है। तो शुभम, आपको मटेरियल कौन सा नंबर रेंजेस, मटेरियल या फिर वेंडर का? अच्छा, मटेरियल का। ओके स्लैश। ओके, दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको, कौन से स्टेप पे आ रही है? हाँ सर, वो अपन जब लेते हैं ना सर। नंबर रेंजेस हाँ, नंबर रेंजेस में जब जब जाते हैं आपने सिलेक्ट किया तो नंबर? सर वो ओवरलैप आ रहा था, ओवरलैप हो रहा था। ओवरलैप हो रहा था, तो फिर यू हैव टू हाँ, मेक द चेंजेस ओवर हियर। यहाँ पे आपको जाके, इंटरवल में गए सर। हाँ, मिडिल वाले में। हाँ सर, इसी में ही हो रहा था। तो यहाँ पे जाके जाके आपको अवेलेबल करके लेना है। कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता, यू कैन गो अहेड एंड यू सर कैन। वही कैसे बनाना एक बार बता दीजिए ना, उसी में ही दिक्कत आ रहा था। ओके, हाँ ये वाला एक है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 4130 हाँ से लेके 4139 यूज किया है, बट हाँ उसने रेंज कितना लिया है, 90 तक लिया है। सो यू कैन हाँ। जस्ट मेक इट 39 और 40। तो फिर आप 40 ओके। से लेके कितना तक यूज कर सकते हो? 40 से लेके इसका लास्ट नंबर क्या था अभी? इसका लास्ट नंबर क्या था अभी जो मैंने डिलीट किया? 90 था 91 था सर, ना। 90। 90, 90 था ना। ओके, तो फिर यू कैन यूज फ्रॉम 41 टू 90 एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट। अच्छा अच्छा। सर ऐसा एक एक मैं बताऊं क्या आपको कि मैं सही बताया क्या? जैसे थ्री थ्री ठीक है, ये तो हो गया। अभी मैं आपको हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ नंबर, ये ये वाला दिख रहा है? हाँ सर, सर ये वाला ले सकते क्या, 414 वाला? क्योंकि 54 45 से नहीं नहीं, ये भी हो गया। ये वाला जो 7 मैंने कर्सर पुट किया, देखो यहाँ पे, ये बता सकते हो मुझे एग्जाम्पल के लिए? नहीं सर, ये नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो पूरा ही दो बचे हैं इसमें सिर्फ। हाँ नहीं, आप एग्जाम्पल की तरह जस्ट मुझे बताइए आपको समझा या नहीं समझा। ये तो नहीं ले सकते, बट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर यू। यू कैन रीड फ्रॉम 40, हाँ सॉरी 1414 से यूज कर सकते हो आप, 1441 से। नहीं सर, ये नहीं समझ आया मतलब। ओके,